Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. First off, Manipur's famed Chakhao black rice and Chakhao white rice will take center stage at the first ever Bharat International Rice Conference BIRC to be held at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi on October 30 and 31st. The Agriculture Department Government of Manipur will lead the state's participation at the global meet, which brings together over 1,000 foreign buyers from more than 80 countries, 3,000 farmer organizations and 2,500 exporters and millers. The event, organized by the Indian Rice Exporters Federation in collaboration with APEDA, aims to reinforce India's leadership in the global rice supply chain. Manipur will be represented by 4 farmer producer companies, FPCs, 2 entrepreneurs and senior agriculture officials. As part of the conference, Japanese, Korean and Chinese delicacies prepared with Chakhao rice will be showcased to attract international buyers. The Agriculture Department will also sign an MOU with APEDA for the trial export of 20 metric tons of Chakhao white rice to Japan between November and December this year. Director of Agriculture Peter Salem said the initiative will enhance farmers' income and boost Manipur's presence in India's agri-export landscape. We hope that on this coming between 30 to 31st of this month, that the Director of Agriculture, Government of Manipur, along with APEDA, they are going to sign a memorandum of understanding between this company. So, what is the main basic purpose for signing of MOU? This MOU. Earlier, about 15 days back, we had the Department of Agriculture. We had sent 2 samples of 30 kg each to Japan. One was black rice and one was the Chakhao white rice, Chakhao MOP. So there is a very good response from the Japanese people, and they have requested to send a trial export of about 20 metric tons of Chakhao white rice, which we will be executing one memorandum of understanding with APEDA to export as a trial just about 20 metric tons to Japan. The MOU will be executed during the Bharat International Rice Conference in Delhi on 30 or 31st of this month. The actual export will happen after the harvest, around the end of November or in the first or second week of December. So it is a big opportunity for the farmers of the state, because export always means higher income for the farmers, higher returns for the farmers. So we have advised the farmers that they should try and plant and cultivate more of this Chakhao black and white both, so that they get better income from the same harvest. So if once you started exporting this white rice, Chakhao, then what is the benefits to be get by the local growers of Manipur? So what we are planning is that we are directly involving APEDA, which is the main organization for export of the food products, including rice. So what we are planning is that we are planning to cut away the middlemen who are involved, who are actually taking away all the profit from the farmers. So state government will directly involve with APEDA and directly involved in the export process, so that the maximum benefit that is coming from the export will be transferred directly to the farmers. There will be minimum involvement of middlemen, so that the entire income that is coming from the export, it is directly transferred to the farmers. So this is the additional benefit that will come to the farmers of the state. In Himachal Pradesh, the 3rd International Shimla Flying Festival and MSME Hospitality Expo had begun at Junga in Shimla. Event organizer Arun Rawat has said that the event had served as an international pre-World Cup, with participants arriving from 7 countries and 10 Indian states, while the panel of judges had represented 3 nations. He had described the festival as a confluence of adventure and hospitality, adding that participants' equipment, credentials, certificates and skills had been thoroughly verified.
Rawat had further said that such events had promoted tourism and aimed to create event-based destination. The festival had commenced on October 24 and was scheduled to continue till October 28. सर मोटिव में बाद में आऊँगा। ये सेकेंड राउंड जो हमने शुरू किया, पहला ट्रायल राउंड था आज सुबह, और जो अब ऑफिशियल जो राउंड है उसका हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं नरेश चौहान जी ने उसका विधिवत उद्घाटन करके फ्लैग ऑफ करके उसको गाड़ियों को जाने दिया। तो अब हमारी ऑफिशियल जिनमें काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उनका स्कोर मेजरेबल होगा। सो ये इंटरनेशनल प्री वर्ल्ड कप है जिसमें कि एज आई सेड कि 7 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और 10 स्टेट्स से डिफरेंट लोग जो हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीम ऑफ जजेस भी करीबन 3 कंट्रीज से है। सो ये एक इंटरनेशनल जिसको बोले ना कि एडवेंचर और हॉस्पिटैलिटी का एक संगम है, और आने वाले समय में हम इसका स्केल एंड स्कोप जो देखना चाहते हैं ये बहुत बड़े रूप में उभर के आए। दैट्स व्हाट आवर विजन इज। So 59 pilots from 7 countries. सर सेफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द इक्विपमेंट। वो चेक होते हैं बिफोर दे फ्लाई। उनके जो क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ देयर सर्टिफिकेशंस वो चेक करी जाती है। इफ दैट ऑल इज इन प्लेस देन दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। फिर उनके स्किल्स भी देखे जाते हैं ट्रायल राउंड्स में, वेदर दे आर स्किलफुल टू क्वालिफाइड फॉर फर्दर राउंड्स और नॉट। इसके अलावा जो प्रिपेयर्डनेस है, फिर अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जहां तक बात है, एम्बुलेंस इज देयर 24/7, डॉक्टर्स इज देयर, and state government, I'm thankful to the health department, and what you call state disaster relief के team है, हमारे अपने volunteers हैं, बाकी जो भी requirement exigencies को meet करने की है, we are all prepared for this. स्लोप की बात की जाए तो किस तरह का यहाँ पता चलता है, कंडीशंस क्या है? सर कंडीशंस फ्लाइबल हैं तभी हम फ्लाई कर रहे हैं, तभी इतने सालों से पैराग्लाइडिंग की साइट है। वी हैव बीन फ्लाइंग विद वेरी गुड क्रेडेंशियल्स फॉर लास्ट 5 years. सो जब कभी ऐसा लगता है कि फ्लाइबल कंडीशंस नहीं है, वी डोंट फ्लाई। सो ऑल जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं हम उनको एडहेयर करते हैं स्ट्रिक्टली एज पर नॉर्म्स। टूरिज्म की अगर बात की जाए तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है इसका इवेंट करवाना? सर सिर्फ टूरिज्म सड़कों से नहीं बनेगा, सिर्फ रूम से नहीं बनेगा। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होलिस्टिक प्लान होना पड़ेगा, एक विजन होना पड़ेगा, और ऐसी ही तो एक्टिविटीज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। आज आप जुनगा से छोटे अगर शहर में देखें, जितने होम स्टेज हैं सब फुल हैं, सो आई मीन ये जब एक्टिविटीज इस टाइप की होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट इट पर्कुलेट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। सो एक जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, वो जो हॉस्पिटैलिटी में होती है वो किसी और सेक्टर में हो ही नहीं सकती, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसका, और जगह भी हिमाचल प्रदेश में ताकि आपने करवाना था? सर हम तो नहीं, मतलब कराते हैं लोग कभी, देखो बीड़ में कितने साल, धर्मशाला में होते हैं, शिमला में ये पहली बार हुआ। तो हमारा एफर्ट्स हैं कि इस टाइप के इवेंट्स हमको इवेंट बेस्ड डेस्टिनेशंस बनाने पड़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में है 1 district 1 product काइंड ऑफ अ थिंग, तो हमको वी हैव टू हैव इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन। माइट बी डिफरेंट, किसी में कोई एडवेंचर हो, किसी में कोई एक्टिविटीज हो। दैट्स द विजन वी शुड होल्ड। सो जुनगा को हम एक फ्लाइंग डेस्टिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं आने वाले समय में। वुमेन पायलट भी है? वुमेन पायलट्स भी हैं, करीबन 3 वुमेन पायलट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 मलेशिया से हैं और एक हमारी डोमेस्टिक वेस्ट बंगाल से है। इसका इवेंट करवाना कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सरकार का सर इसमें अपार्ट फ्रॉम सरकार बहुत सारी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उनको इन्वॉल्व करके इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेकिन बस सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना इटसेल्फ इज अ चैलेंज, बट चैलेंजेस हैं तभी हम हैं, अगर चैलेंजेस ना हो तो कोई भी हो। सो वी मिटिगेट दोज चैलेंजेस एंड विद डिटर्मिनेशन वी ट्राई टू अकम्प्लिश एंड ओवरकम दोज चैलेंजेस। कितने दिन ये चलने वाला है? सर ये आज 25 को इसका आगाज हुआ है, आज स्टार्टिंग है, तो 28 तक ये चलेगा। 28 की शाम को एक क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें अवार्ड्स बांटे जाएंगे। Furthermore, at the 3rd International Shimla Flying Festival and MSME Hospitality Expo, Naresh Chauhan, Principal Media Advisor to Chief Minister Sukhvinder Sukhu, had said that the event had been significant from both eco-tourism and adventure sports perspectives.
He had noted the pilots from 7 countries and 10 Indian states had participated in the event, describing the organization of international level pre-Asian Championship and pre-World Cup in a small village as a commendable effort. Chauhan had added that the initiative would boost tourism in Himachal Pradesh and that the MSME's administration and state government had fully supported the festival. An incident had surfaced from Churachandpur where a senior police officer and his family received online threats from unidentified anti-social elements. Manipur police swiftly registered a case and launched an investigation, warning that intimidation or obstruction of police officers will not be tolerated. Citizens have been urged not to share or amplify such unlawful content. Meanwhile, as part of Police Commemoration Week 2025, the Manipur Police Training College, Pangai, organized a cleanliness drive from Pangai Bazaar to Acha Khong Bridge with around 200 participants, including officers and local volunteers, to promote cleanliness and strengthen police public relation. Security forces continued extensive search operation across the district to curb extortion and other crimes. 4 active cadres from KYKL, KCP, Taibang Gamba and Prepak Pro outfits were arrested and arms and mobile devices were seized. In its drive against traffic violations, police issued 11 challans worth ₹16,000 and removed tinted films from vehicles. Movement of 129 essential goods vehicles along NH37 was secured under heavy convoy protection, while 114 checkpoints remained active with no detentions reported. Police once again appealed to the public not to believe in rumors or circulate fake videos and urged citizens to return looted arms and verify information via the Central Control Room helpline 9233 522 822. President Draupadi Murmu and Defence Minister Rajnath Singh attended the inauguration of Yashoda Medicity Hospital, commending the institution for aligning its mission with national health priorities. The President had said that Yashoda Hospital had adopted national priorities with full devotion and had been established as the first centre in North India under the system for TB elimination in private sector. She had urged the institution to actively contribute to national initiatives addressing sickle cell anemia. President Murmu had also praised the leadership commitment to social and national service, expressing hope that the hospital would strengthen local and national health services with a spirit of Swadeshi and strong focus on medical research. She had further emphasized that the underprivileged who had contributed to the nation's progress must receive support in every field. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन
इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम यशोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहां आने से पहले जो वहां विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर। Defence Minister Rajnath Singh during the inauguration said it had been a matter of great pride for Yashoda Medicity to be recognized as the robotic surgery training center for South Asia. Singh had recalled that Dr. P.N. Arora's personal experience of seeing his mother battle cancer had inspired him to create an institution rooted in sympathy, compassion and dedication, leading to the birth of Yashoda Medicity. The Defence Minister had also highlighted the government's commitment to the marginalised, noting that 10 crore families across India had been provided health insurance coverage of up to 5 lakh per year under Ayushman Bharat. He had added that affordable medicines were being made available through Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra, reaffirming the government's resolve to make India a developed nation by 2047. आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सब के बीच उपस्थित हैं। यहां आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से
मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिन से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। साथियों, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.